Yes, dear students, in last class, I was explaining about cost concept. लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझाया. आज आप लोग थोड़ा समय देंगे तो आपको ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट और इजी से समझ में आ जाएगा. स्टार्टिंग से लास्ट तक एक रिव्यू दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आए. व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट? ए कॉस्ट इज दैट कॉन्सेप्ट which incurs the total expenditure of the business while producing a single unit per production. यानी कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, यानी कि उस आउटपुट का फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, उस आउटपुट का वेरिएबल कॉस्ट क्या है. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज समेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. यानी कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है, हमको किसी भी आउटपुट का टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने का है. तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए उसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट होता है. तो ये दोनों कॉस्ट को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट आएगा. यानी कि आपके पास डिफरेंट बुक्स है, you can go through the different books, the summation of total cost. You can see the schedule. Different books have different schedules. By that you can get a help and understood this concept. What is cost? Cost is a concept, or total cost is a concept of fixed cost plus variable cost. अब आइए फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है. फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट which cannot be neglected while production process. Fixed costs are always payable, and fixed cost is that cost which is engaged in production process for the production of output with capitals, machines and different forms of assets. Example of fixed cost: wages and salaries of labor, rent, insurance. Production cost means जो इनपुट्स आपने खरीदा है उसके ऊपर जो खर्चे आए हैं ये आपके फिक्स कॉस्ट है. अब आइए वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ऑल द रॉ मटेरियल्स which is purchased directly for the production of output of single unit is called as variable cost. For example, coals, raw material, these all are called variable cost. And variable cost increases as your output increases. डिफरेंस देख लीजिए. वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो अगर आप अपना आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने इनपुट्स को बढ़ाएंगे, और जब आपके इनपुट्स बढ़ेंगे तो उसमें आपके वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होंगे. सो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स constant for any number of unit. Either you are going to produce, or if not, you are not going to produce any output, then also you have to give fixed cost. So fixed cost remains constant for every number of unit, and which in long run the fixed cost decreases, comes to zero, but never, it always remains positive. It comes in zero in figures but remains positive, but never becomes zero. The quality of the curve of fixed cost is this, means the fixed cost is parallel to x-axis. Fixed cost is parallel to x-axis and it never becomes zero. Fixed cost never becomes zero and it always remains in a positive amount. यानी कि इसका अमाउंट कभी नेगेटिव नहीं होता है ना जीरो होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन कॉस्ट कम हो जाएगा. लॉन्ग अमाउंट यानी कि ज्यादा अमाउंट में अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यह है कि इफ
you are not going to produce any amount of output, means your required input is zero. यानी कि आपको जो इनपुट्स लग रहे हैं वो जीरो इनपुट्स है, यानी कि वहां पे आपने वेरिएबल कॉस्ट में कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया। लेकिन जब समेशन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिला के कौन सा कॉन्सेप्ट नया राइज करेगा, दैट इज टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट ऑलवेज rises due to change in variable cost. So these were the concept in last class what I have explained, and if all the cost divided by number of unit, then you will get average cost. So the next concept was our average fixed cost and average variable cost. So here a graph is there where you can see that this is a graph of total fixed cost. What do you mean by total fixed cost? Total fixed cost is that where the business is incurring the cost, where examples of fixed cost are example rent, insurance, premiums, and expenditure regarding financial assets purchased by the firm, which cannot be neglected. Those are called as fixed cost. And in this fixed cost, you can see the concept of total variable cost. What is total variable cost? Total variable cost is that cost which incurs in production process with the increase in inputs of the output. Means here you are going to increase your output. If you are going to increase your output, in that situation your cost will be increased. Why the costs are increasing? Because you are going to produce an additional amount of output. So if you are going to produce an additional amount of output, you need variable inputs for the production of same unit. When you are going to see the variable inputs unit, the variable inputs unit for particular unit Sir, will always increase with the output. So fixed cost plus sir, variable cost gives you the concept of total cost. So total fixed cost. sir, your mic is. Hello, हाँ बोलो बेटा. Sir, your camera is off. My camera is off. एक मिनट बेटी, एक मिनट. एक मिनट, 1 minute बेटा, I am seeing. Okay, sir. तो देखिए ना सर, कैमरा ऑफ हो गया सर. हाँ, the total fixed cost. Now come to the concept. The total fixed cost was explained, and now the summation with total fixed cost and variable cost gives you the concept of total cost. So in this way you can see a different schedule from different books, and you can try to understand this demonstration of graph where I have explained the concept of total fixed cost plus total variable cost and total cost. And total fixed cost always starts from here. It never becomes zero, because in any
लॉन्ग रन प्रोडक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन। बिजनेस प्रोसेस में जब भी आप जाएंगे, शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, हम दोनों कॉन्सेप्ट को साइड कर रहे हैं, हम एक ही कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये ध्यान दीजिएगा कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता है। ध्यान से सुन लीजिए टेक्निकल वर्डिंग्स क्या। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बिकम्स जीरो, बट वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स जीरो, बिकॉज if you are going to purchase zero inputs, then your variable cost will also be zero, but fixed cost remains as it is. That is the concept of fixed cost and variable cost. And fixed cost is parallel to x-axis, and variable cost always starts from zero origin, because if there is a zero input, so it starts from zero. And for any number of units you have purchased, for the concept of fixed cost, it should be starts from positive. It never becomes zero. So summation of fixed cost plus variable cost is equal to total cost. So the increase in total cost is the result of only increase in variable cost. Why variable cost increases? वेरिएबल कॉस्ट क्यों बढ़ता है? वेरिएबल कॉस्ट इसलिए बढ़ता है कि आप एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पेन प्रोड्यूस करने में जो एक्सपेंडिचर आए वो वेरिएबल कॉस्ट हुआ। अब उसके बाद दूसरा पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए इनपुट्स और ज्यादा लगेंगे, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट के एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज होंगे। और वेरिएबल कॉस्ट जब इंक्रीज होगा, आपका टोटल कॉस्ट में डिफरेंस दिखाई देगा, और जो डिफरेंस एडिशनल दिखाई देगा उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द एडिशन टू टोटल कॉस्ट। ध्यान से सुन लीजिए, टोटल कॉस्ट में जब भी आपका एक यूनिट बढ़ता है और टोटल कॉस्ट में वेरिएशंस आते हैं, तो वेरिएशन सिर्फ एक वजह से आया है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, एंड द रिजल्टेंट इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, बिकॉज द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी नंबर ऑफ यूनिट दैट इज फ्रॉम जीरो टू इंफिनाइट। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो अमाउंट आपको कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप एक भाड़े के घर में रहते हैं, तो भाड़े के घर में अगर आप रह रहे हैं तो आपको हर महीना फिक्स रेंट देने का है, वही बिजनेस में फिक्स कॉस्ट हो गया। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट वो है, फॉर एग्जांपल आज आपके फैमिली मेंबर्स को कोई इनविटेशन कार्ड आया, मैरिज में सबको बुलाए, और आज आपने अपना भोजन घर पे ग्रहण नहीं किया, यानी कि यू हैव नॉट टेक एनी फूड मटेरियल्स, बिकॉज टुडे यू आर इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड और बाय रिलेटिव्स फॉर मैरिज प्रपोजल और एनी इनविटेशन proposal. So in that option you are not going to prepare any meal, that is dinner for the night, so your variable cost is zero. But the room which you have taken on the rent and staying for 12 months, you have to pay the rent for 12 months. You cannot be neglected or you cannot be exempted from paying the rent. That is the concept of fixed cost. That's all. What do you mean by variable cost? Variable cost means additional expenditure regarding the after the house. Means what are the variable expenditures? For example, you can buy a cloth, you will not buy a cloth, that depends upon your internal will. आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है वो वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आपको रूम रेंट फादर देंगे ही देंगे। तो उसी तरह बिजनेस प्रोसेस में भी वही एक कॉन्सेप्ट कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस है, प्रीमियम है, और रूम रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सब आपको बिजनेस में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये हमेशा आपको देने का है।
लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपके खर्चे ज्यादा आएंगे, आप कम प्रोड्यूस करेंगे तो आपके खर्चे भी कम आएंगे, आप नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगा। लेकिन टोट फिक्स कॉस्ट के साथ वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आप प्रोड्यूस करें, कंज्यूम करें, नहीं भी कंज्यूम करें, आपको रूम रेंट आपको देना ही पड़ेगा। आपको जनरल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग बिजनेस, you cannot stop those expenditures. That's why fixed cost never becomes zero. This is the concept for this overall graph. Now come to the average variable cost. Come to the concept of average variable cost. Average variable cost को समझने के लिए सबसे अच्छा कंडीशन, आप एक ग्राफ बना लीजिए और उस ग्राफ में देखिए कि ये आपके कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। आपके कॉस्ट कॉन्सेप्ट में दिस इज ए मिनिमम पॉइंट एंड हियर द आउटपुट इज इंक्रीजिंग, दैट इज I1, 2, 3, 4। ये आपके आउटपुट्स बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब आपके आउटपुट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट देख लीजिए, योर एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। एवरेज कॉस्ट जो है, यानी कि एवरेज कॉस्ट इज ऑन वाई एक्सिस, एवरेज कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस एंड आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस। यानी कि जब आपका एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगा तो उस समय आपका आउटपुट बढ़ेगा। ध्यान से क्लियर करिए, जब आपका एवरेज कॉस्ट, यानी कि एक शेड्यूल देखिएगा और उस शेड्यूल में यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। हाउ यू हैव obtained the concept of average cost? Average cost is obtained by average variable cost is obtained by the variable cost divided by number of units. So variable cost is equal to average cost by number of units को डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ को जब आप समझेंगे तो वहां पे वो ग्राफ ये बताएगा कि जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने के बाद ये मिनिमम होगा, और मिनिमम के कंडीशंस में ये यूनिट आपके 1, 2, 3, यानी कि इस कंडीशन तक आपके 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 3 यूनिट्स प्रोड्यूस होने के बाद आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट is minimum at this situation. When average variable cost from this situation, your output is 3rd unit. Now from this situation, your average variable cost, that is y-axis cost, is increasing. Average variable cost from this situation, it is increasing. That is called as diminishing returns, and here you can see increasing returns, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट कम हो रहा है और आउटपुट बढ़ रहा है। और इस मिनिमम पॉइंट के बाद आप ये ध्यान दीजिएगा उस शेड्यूल में कि आपका यहाँ से कॉस्ट बढ़ रहा है। देखिए वाई एक्सिस, यानी कि इस सिचुएशन से और इस सिचुएशन को मिलाइए, आपके कॉस्ट बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपके कॉस्ट बढ़ रहे हैं, आउटपुट भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग इन ग्रेटर एक्सटेंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स डिक्रीज इन कॉस्ट, decrease in cost plus output on x-axis explains that your output is also increasing. And after the situation of minimum, that is average variable cost, you can imagine that
here your output is also increasing, but your cost is also increasing. When the cost increases, it is due to result of variable cost, because variable cost is increasing, and variable cost is increasing and output is also increasing. यानी कि जब आप बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज करेगा, तो नो डाउट देयर इज ए चेंजेस इन आउटपुट. सो हियर the graph of average variable cost is there, where from 50%, when it is 50%, in that situation the cost will be minimum. यानी कि एक टेबल में देखिएगा और उस टेबल में आपको ये समझ में आएगा कि आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है, एक 0 यूनिट पे क्या है, फर्स्ट यूनिट पे क्या है, सेकेंड यूनिट पे क्या है, और थर्ड और फोर्थ यूनिट पे क्या है. जब वो मिनिमम आएगा, वो मिनिमम का स्टेज ये है. और मिनिमम के बाद फिर एक बार आपका आउटपुट कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है. दिस इज अ डाउनफॉल ऑफ कॉस्ट and this is a rising of cost concept of average variable cost. And average variable cost remains and your output again increases. So this is the concept of average variable cost. Now come to the graph of average cost, average variable cost, and average fixed cost. The relationship, you come to the study of relationship, and the graph which is drawn here, it forms the shape of inverse U shape. What is the result of inverse U shape? That graph represents that in first situation, in first stage, here the average variable cost decreases and it comes to minimum, and after minimum again the average variable cost increases, where law of variable proportion plays an important role. यानी कि एक बार आपका आउटपुट रेज होता है, आउटपुट रेज होने के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होने के बाद गिरने लगता है. वही केस इसमें आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में दिखाई देगा कि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने के बाद मिनिमम पे आएगा, मिनिमम होने के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा. और कौन सा शेप फॉर्म करेगा? इनवर्स यू शेप. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब आइए average fixed cost. This is the concept of average fixed cost, where average fixed cost divided by number of units, variable cost divided total variable cost divided by number of units, that is called as average variable cost. So the summation of average fixed cost plus average variable cost is termed as average cost. How you can obtain average cost? Average cost means total cost by number of output. Producing output, you can get total cost also. So the difference in total cost, the difference is in total cost is named as मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो. यानी कि जो डिफरेंस आपको आ रहा है फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, आपका टोटल कॉस्ट 40 है फर्स्ट यूनिट के लिए, सेकेंड यूनिट के लिए 60 है. यानी कि डिफरेंस अमाउंट लास्ट यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस 20 आया. और जो एडिशनल हुआ है टोटल कॉस्ट में, इस 20 को हम मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट is the difference in the total cost, or the amount of output which you are going to produce, or the amount of output which you are going to get, that is called as marginal product. What is marginal product? Marginal product means the addition to total product.
Addition to total product is known as marginal product. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब यह है कि हम इनपुट वन इनपुट लगाएं तो वन आउटपुट मिला, हम टू इनपुट्स लगाएं तो टू आउटपुट्स मिला। यानी कि हम जो भी वेरिएबल्स को यूज करेंगे, वेरिएबल्स क्या है? लेबर है, मशीन्स है, ये सब वेरिएबल्स है। हम जो भी वेरिएबल को लगाएंगे बिजनेस में, जो भी वेरिएबल्स को हम इंड्यूस करेंगे और उससे जो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल, एंड दिस एडिशनल इज आल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल। एडिशनल का दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल। जब भी हमारे में चेंजेस आएंगे और उस चेंजेस को अगर देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल आउटपुट। Marginal output means it is a resultant of total output. Total output is the resultant of change in input and change in output. यानी कि these are interlinked and interdependent among themselves. यानी कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है, हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो डिफरेंस अमाउंट आता है टोटल कॉस्ट में या टोटल प्रोडक्ट में, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, और टोटल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। यही डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, कॉन्सेप्ट सब सेम है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या है? आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, फिक्स कॉस्ट भी गिर रहा है, और आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसलिए बढ़ रहा है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि आप नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके बढ़ रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स डिक्रीज कर रहे हैं और आउटपुट भी डिक्रीज करना, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो इससे ये ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बिकॉज you are going to change the number of unit of producing unit. That's why it is in increasing order, and fixed cost always decreases according to last concept which I explained, but it never touches zero. And here average variable cost never touches average cost because there will be some difference. Here average फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज दैट, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा लेकिन जीरो नहीं रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप जब आप देखेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे। देयर विल बी सम डिफरेंस एंड देयर विल बी थ्री डिफरेंसेस हियर, where for all the three graphs, that is average cost, average variable cost and average fixed cost, the cost always decreases, but for average variable cost the cost is in rising condition because your inputs are increasing and resultant increase in cost resulted to change in output. That's why your variable cost is going to be increased. So these are the differences, relationship between average cost, average variable cost. Both the cost never intersect at a point, and average variable cost always cuts at rising portion to average fixed cost. इस राइजिंग पोर्शन का मतलब क्या हुआ मालूम? लॉन्ग रन में जब आप स्टडी करेंगे, यही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये आपका मार्जिनल कॉस्ट में चेंज हो जाएगा, और यही मार्जिनल कॉस्ट ये बताएगा कि दिस इज द राइजिंग पोर्शन ऑफ आउटपुट व्हेन एन प्रोड्यूसर इज गोइंग टू स्टॉप इस आउटपुट।
यानी कि जब आप आगे पढ़ाई करेंगे, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सबका आंसर एक ही आएगा। अब सिंपल कंडीशन में मैं बता दे रहा हूं, 1 किलो जिलेबी का दाम आप जोड़ लीजिए 70 रुपीज। 10 किलो जिलेबी का दाम कितना होगा? 700। और 700 बाई 10 डिवाइड करेंगे, वही आपका एवरेज कॉस्ट है। 700 का डिफरेंस भी दिखाएंगे, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 70 रुपया, 10 यूनिट्स ऑफ जिलेबी प्रोड्यूस करने में 700 रुपीज। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल आउटपुट। इसको आप समझिएगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट where your cost is always decreasing, marginal cost is decreasing, and it is coming to minimum condition, and after minimum it is going to rise। यानी कि आपका 1 किलो जिलेबी बनाने में 70 रुपया कॉस्ट आया, मिनिमम कितना है? 70 है। 70 के बाद फिर दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 140, तीसरा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 210। इस तरह आपका कॉस्ट कर्व हमेशा ऊपर के तरफ ही बढ़ता है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज करेगा और धीरे धीरे ये मिनिमम पे आएगा। मिनिमम कितना है? 70। यानी कि हर यूनिट पे, यहाँ पे भी आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 70 आएगा, यहाँ पे भी आप प्रोड्यूस करेंगे तो 70 आएगा, यहाँ भी आप प्रोड्यूस करेंगे तो 70 आएगा। बिकॉज why 70 concept is there? Because you have added डिवाइड कर देंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। अब 210 को भाग देंगे तो 70 से ये कॉन्सेप्ट आएगा, और ये हर यूनिट के लिए, यानी कि टू प्रोड्यूस एवरी एक्स्ट्रा यूनिट in marginal cost you have to incur an expenditure of 70। फर्स्ट यूनिट के लिए 70 है, सेकेंड यूनिट के लिए 70 है, थर्ड यूनिट के लिए 70 है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो 700 है। और नंबर ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते हैं तो आपको एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, और आपको एवरेज कॉस्ट भी आ जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। ये ग्राफ को आप देखिएगा। इस ग्राफ को देखने के बाद आपके पास डिफरेंट बुक्स है, उसमें शेड्यूल दिया होगा, और उस शेड्यूल को देख करके ग्राफ को जब आप ड्रॉ करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। तथागत।